میرے پیارے ہندوستانی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری پیاری ماں بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں دل کی آواز، اور دل کی آواز کے ساتھ میں واحد ہاشمی۔ آج ہم بلال باغ میں آئے ہوئے ہیں، جو بلال مسجد کے پاس بنگلور میں ٹینی روڈ میں ہے۔ جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں، شاہین باغ کی طرح بلال باغ کو بھی، کیونکہ آج بلال باغ کے پورے 100 دن ہو چکے ہیں جب سے یہ پروٹیسٹ شروع ہوا ہے سی اے اور این آر سی کو لے کر۔ بلال باغ میں 100 دن پورے کر دیے، لیکن پھر بھی آج تک بھی حکومت کی طرف سے کوئی بھی ڈیسیشن نہیں آئی ہے۔ لیکن جب سے کرونا وائرس شروع ہوا ہے، تو کرونا وائرس کے چلتے ہوئے بھی یہاں کے لوگ ہر مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے پورے 100 دن یہاں پر پورے کر چکے ہیں۔ اور جیسا کہ لوگوں آپ جانتے ہیں کہ پورے 140 باغ بنے تھے، اور اس کی بنیاد شاہین باغ تھی۔ یہ شاہین باغ کی جڑیں جو ہے پوری انڈیا میں پھیلتے ہوئے 140 باغ بنے، لیکن آج سارے باغ کرونا وائرس کی وجہ سے اٹھ جانے کے باوجود بھی، لیکن بنگلور شہر میں ایک بلال باغ آج بھی ایگزسٹ کر رہا ہے، اور اس کے پورے 100 دن ہو چکے ہیں۔ لیکن اس تحریک میں جو ہے ہمارے سید عمران بھائی، جب سے سی اے اور این آر سی شروع ہوا ہے، اس تحریک میں اور اس پروٹیسٹ میں انہوں نے اپنی دن رات میں نے اپنی آنکھوں سے لائیو دیکھا ہے، دن رات اس میں محنت کرتے ہوئے اس کارروائی کو انجام دے رہے ہیں، اور حق کی آواز اٹھا کر رکھے ہیں، جو ان کی دل کی آواز حق کی آواز کہہ رہی ہے۔ چلیے آج ہم اپنے سید عمران بھائی سے پوچھتے ہیں کہ ان کی دل کی آواز کیا کہتی ہے، اور ہمارے عمران بھائی یہاں کی جو سید عمران صاحب جو یہاں کی پوری ذمہ داری نبھا رہے ہیں، یہاں کا پورا رسپانسبلٹی لے کر اس بلال باغ میں اپنی پوری محنتوں کے ساتھ، اپنی ساری قربانیوں کے ساتھ اس بلال باغ کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور ان کا کہنا یہی ہے کہ جب تک سی اے اور این آر سی پارلیمنٹ سے ریجیکٹ نہیں ہوگا، ہم اس بلال باغ کو یہاں سے اٹھنے نہیں دیں گے، چاہے اپنی جان بھی چلے جائے۔ چلیے ہم پوچھتے ہیں سید عمران صاحب سے ان کی دل کی آواز کیا کہتی ہے۔ جیسا کہ دوستوں آپ جانتے ہیں، دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ چلیے ان سے سنتے ہیں ان کی دل کی آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے ہمارے واحد ہاشمی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کا چینل دل کی آواز لوگوں کی دلوں کی آواز لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ دیکھیے یہ بہت ہی قیمتی جاب آپ نے چنا ہے، بڑے حق کے ساتھ، بڑی سچائی کے ساتھ اس کو نبھائیں۔ اس طرح جو بھی میڈیا کر رہی ہے بالکل اس طرح نہ کریں، دل کی آواز پہنچائیں، جو سچ جو بھی ہے پہنچائیں۔ اور جب آپ سچ بولیں گے تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، روزے سے ہوں، آپ پر تکلیفیں ضرور آئیں گی، ان تکلیفوں پر صبر کریں، برداشت کریں۔ انشاءاللہ دنیا بہرحال ختم ہو ہی جائے گی، 60-70 سال کی زندگی ہے، مگر آپ سچ کے ساتھ ہوں گے تو اللہ کی یہاں پر آپ کو بہت بڑا اجر ہے۔ تو دل کی آواز آپ جاری رکھیں، ساری رکھیں، اور انشاءاللہ ہمارا سب کا تعاون اور ہمارا سب کا ساتھ آپ کی دل کی آواز کے لیے ہمیشہ رہے۔ میں سب سے پہلے آج 100 دن ہمارے مکمل ہوئے ہیں، میں میرے کچھ دوستوں کو یاد کرنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ تھے، ابھی بھی ہیں، اس وجہ سے پینڈیمک کی وجہ سے ریلیف کاموں میں لگے ہوئے ہیں، وہ آج یہاں پر نہیں آتے۔ ان کو بڑی دل کی گہرائیوں سے یاد کرتا ہوں، کیونکہ ان کے بغیر یہ ناممکن ہے۔ میرے بہت سارے دوست ہیں، ہم ایک دوسرے کی طاقت ہیں، انشاءاللہ ہم طاقت بنتے رہیں گے۔ اور دوسری بات جیسا آپ نے کہا کہ دل کی آواز یہ ہے کہ اللہ نے ذمہ داری دی ہے، تو ذمہ داری اٹھانے کی طاقت بھی وہی دے گا۔ ہم کمزور ہیں، بالکل کمزور ہیں، ہمیں بخار آ جاتی ہے اور ہمیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر جو طاقت ہے وہ اللہ کے خزانے سے آتی ہے۔ جب وہ خزانوں سے طاقت آتی ہے تو ہم اس طاقت کو لے کر کام کریں گے۔ ذمہ داری دی ہے تو ذمہ داری پوری طرح سے اٹھائیں گے، چاہے کوئی لوگ بھی ہمارے مخالف کیوں نہ ہو۔ سچ بات کرنے کے لیے ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں، چاہے ساری دنیا مخالف ہو جائے۔ میں اکیلا تنہا کر کر اگر سچ بات کہنے کی میں ضرورت رکھتا ہوں تو میں انشاءاللہ ضرور اس سچ بات کو ساری دنیا کے سامنے ضرور کہوں گا کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں، حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ اور میں ایسا واحد شخص نہیں ہوں، بہت سارے نوجوان ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، بہت سارے دوسرے ہمارے دوست ہیں جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت سارے لوگ ابھی ریلیف کام میں لگے ہوئے ہیں پینڈیمک کی وجہ سے۔ سب لوگوں کی طرف سے میں جو ہے اس بات کو بتاتا ہوں کہ ہم لوگ 100 دن پورے ہو گئے، خوش نہیں ہیں۔ دراصل خوش اس لیے نہیں ہیں کیونکہ ہماری آواز کو سنا نہیں گیا، اور خوش اس لیے بھی ہیں کیونکہ اتنی ساری پریشانیاں آئیں، بہت سارے حالات آئے، مگر ہم کس سے مس نہیں ہوئے، ہم یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ ہمت دیتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہمت چھوڑ کے دیے اور کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو، آپ کی فیملی ہے، آپ کے بچے ہیں،
आप चले जाओगे तो क्या होगा। अजमेर के अंदर जो दिल्ली के अंदर अरेस्ट हुए, सफूरा दरगाह अरेस्ट हुई, गुलफिशा अरेस्ट हुई, शरद अरेस्ट हुई, ये सारे अरेस्ट हुए हैं, आप भी अरेस्ट हो जाओगे। तो देखिए अगर मेरे मुकद्दर में अरेस्ट होना है तो वो मैं कोई भी चीज़ करके अरेस्ट हो सकता हूँ या कोई चीज़ नहीं करके भी अरेस्ट हो सकता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ हमें डरा नहीं सकती, क्योंकि हक बात बोलना, जब भी सच बोला जाएगा वहाँ पर जो है जालिम का जुल्म बढ़ेगा ही, वहाँ रुकेगा नहीं। जहाँ सच की आवाज़ बुलंद होगी तो जालिम अपने जुल्म को भी बुलंद करेगा। और वो सारी चीज़ें हमें पहले से ही पता थी, ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं है। तो हमने शुरू में ही कहा था कि भाई यार जीते तो वतन मुबारक, अगर हार गए तो दफन मुबारक, ये एक स्लोगन चला था। तो ये दर हकीकत में ये इंडीड हमने कहा था जी, ठीक है। और हम इस पर जमे रहेंगे, क्योंकि हमें जो है इस काले कानून को बिल्कुल ख़त्म करना है। जैसे कि कोरोना है, इसकी दवा आ जाएगी इंशाअल्लाह, 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में आ भी जाएगी और ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा। मगर ये NRC NPR एक ऐसी बीमारी है जहाँ नस्लें तबाह हो जाएगी। इस मुल्क की खूबसूरत भी जो है वो तबाह हो जाएगी। इस मुल्क का जो प्यार है, जो हमदर्दी, जो भाईचारी है, वो तबाह हो जाएगी। हम उस वायरस से लड़ेंगे, उस वायरस को बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। लोग भूल गए हैं कि एक NPR NCR की भी लड़ाई हम लड़ रहे थे। पैंडेमिक में लोग जो है अपने कामों की वजह से, बंद होने की वजह से, अपनी तजारतों की बंद होने की वजह से वो भूल चुके हैं। बहरहाल वो याद करेंगे कि ये जो लड़ाई है ये मामूली लड़ाई नहीं थी। पैंडेमिक के बाद ये फिर इस चीज़ को छेड़ेंगे और छेड़ रहे हैं। 800 मुस्लिम एक्टिविटीज़ को जो है दिल्ली के अंदर अरेस्ट किया गया है जी, जिसका नाम सफूरा दरगाह आप जानते हैं, इससे इफेक्ट हैं जी, और बहुत सारे मर्द हजरात भी हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। और सफूरा दरगाह अभी 4 महीने की प्रेगनेंट है, वो तिहाड़ जेल में। और जोन में भी आप किसी प्रेगनेंट औरत को अरेस्ट नहीं कर सकते, मगर वहाँ पर किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि ये इनके इरादों में कितने पक्के हैं कि भाई UAPA के एक्ट में डाला गया है कि वो UAPA का एक्ट इतना खतरनाक है कि जेल तक नहीं। हामिला औरत को वहाँ पर नहीं किया गया। चलो हामिला औरत है, वहाँ पर बहुत सारी हमें हमदर्दी जता रहे हैं, लोग जताएंगे इंशाल्लाह, मगर दूसरी औरतों को भी बंद किया गया। क्या कसूर क्या था भाई? मैं ये मुल्क के लोगों से पूछता हूँ, क्या हक़ के लिए लड़ना कसूर है? क्या संविधान को बचाना कसूर है? हम लोग दिन रात मेहनतें करते हैं, किस लिए करते हैं? हमें लोग गालियाँ देते हैं, छोटी छोटी बातें कहते हैं, कई तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं, किस लिए लगा रहे हैं? किसी ने आके देखा ये जो लोग जो उन पर बातें करके वो सच हैं या वो गलत हैं? किसी ने तहकीक नहीं किया। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर कोई लोग मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क के संविधान की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं, तो कम से कम उनके लिए कुछ करो ना करो, उनके लिए इतना तो करो कि भाई उनके लिए दुआएँ करो, क्योंकि उनके भी जो है फैमिलीज होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। आप जिस तरह से फील करते हो, आप जिस तरह से जज्बात रखते हो, उनके भी जज्बात होते हैं। ये कोई आसमान से नहीं टपकते, इनको कोई अलग पावर्स नहीं मिलते, सुपर हीरोज़ नहीं होते, आप ही की तरह आम लोग होते हैं। ठीक है, उनको नींद भी आती है, उनको बुखार भी आती है, उनको चोट लगी तो ज़ख्म भी होता है, खून भी बहता है। कोई सुपर हीरोज़ नहीं है, आप ही की तरह नॉर्मल लोग हैं। मगर अल्लाह ने चंद लोगों को चुन लेते हैं किसी काम के लिए। अगर चुन लिया है तो वो काम करेंगे और पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे, भले कुछ भी हो जाए, आगे हो या पीछे हो, कुछ भी हो जाए, मगर वो हरगिज़ अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। और इंशाअल्लाह हम भी अपने मकसद से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। हमें बहुत सारे, मुझे अफसोस होता है भाई साहब, इस बात पर अफसोस होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं हमारी फ़िक्र करते हैं, बट फिक्र करने का अंदाज़ इस तरह से होता है कि वो हमें डराते रहते हैं। पता नहीं क्यों, किस बात पर ये फ़िक्र थोड़ी हुई। लेकिन आप तो मुझे कहे कि हम डरने वालों में से नहीं हैं, और चाहे जब तक कि हुकूमत की तरफ से अगर CA NPR और NRC रिजेक्ट नहीं होगा, हम डरेंगे नहीं। तो ये अभी ये जो सिलसिला, ये बिलाल बाग 100 दिन हो चुके हैं और ये शुरू होकर भी 4-5 महीने हो चुके हैं। तो इसमें आप क्या राय है, ये कब ख़त्म होगा CA और NRC NPR? अभी तो हुकूमत भी टोटली कोरोना वायरस के मसले में उलझ कर उसी में बिजी है, लेकिन CA और NRC NPR का कहीं पर भी चर्चा नहीं हो रहा है। इसको आप कैसे आगे लेके जाएंगे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर CA NRC का कहीं पर भी चर्चा नहीं हो रहा, आप दिल्ली को देखें तो दिल्ली के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया कि 800 लोग अरेस्ट हुए हैं। कोई CA NRC के लिए ही अरेस्ट हुए हैं और पैंडेमिक में अरेस्ट हुए हैं, लॉकडाउन में अरेस्ट हुए हैं। तो चर्चे हैं, चर्चे बननी है। और दूसरी बात, हम
हरगिज़ नहीं डरेंगे। क्यों डरेंगे भाई? डरने की बात ही क्या है? जैसे बहुत सारे की बात है तो डर हरगिज़ नहीं है। क्यों होगा डर? किस बात का डर होगा? जब अल्लाह ने ज़िंदगी दी है तो अल्लाह जान और माल का इख्तियार अल्लाह रखते हैं, तो डर किसके है? इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात, आपने ये भी मुझसे सवाल किया था कि अभी आप गवर्नमेंट से क्या तवक्को रख रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं? अभी गवर्नमेंट से तवक्को यही है कि वो हमारी बात सुने। ठीक है, हम कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं करते। अगर आप अलग ऐलान बता दें पार्लियामेंट में नहीं भी NPR भी नहीं हुआ, NCR भी नहीं हुआ, और NPR होगा तो भी उन उसूलों के साथ होगा जो 2010 में थी, या फिर नए जो तरीके आए हैं उनसे नहीं होगा। बस इतना ही तो चाह रहे हैं, दूसरा और क्या करें? NRC नहीं होगा, नहीं होगा। इतनी आपको बोलने क्या मुशक्क़त आ गई, इतना पहाड़ आपके सीने पर क्या बैठ गया है कि आप ये 2 जुमले बोल नहीं सकते। और देखिए 140 बार बुढ़े, आज बिलाल बाग आज भी अल्हम्दुलिल्लाह है। पता नहीं इसके ऊपर कल क्या हालात आएंगे, कौन हमारा दुश्मन बनेगा और कौन हमें टारगेट करके क्या फ्रेम करेगा, हमारे कैरेक्टर को असैसिनेट किया जाएगा या फिर हम पर ही कुछ किया जाएगा। सारी चीज़ें हमारे साथ हैं, सारी चीज़ों का इल्म हमारे पास है। ठीक है, और इसके बावजूद इंशाअल्लाह आपके लिए हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे और हम जो है इससे जिंदगी पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। जी मुश्किल NRC और NPR के ताल्लुक से मैं आपको बता दूं, अगर जीत गए तो वतन मुबारक, अगर मर गए कफन मुबारक। इमरान भी कहें कि अगर हम जीते तो वतन मुबारक और मरे तो कफन मुबारक, और ये कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के संविधान को मिटने नहीं देंगे, चाहे अपनी जान को क्यों देना पड़े। तो मैं बस इतना ही कहूँगा, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से जल्द जो लोग 100 दिन से और 4 महीनों से जो CA और प्रोटेस्ट को लेकर सारे हिंदुस्तान में एक चर्चा चल रहा है, तहलका मचा है, तो इसके लिए हुकूमत को भी डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग संविधान को बचाने के लिए अपनी जान दे सकते हैं। क्योंकि ये कह रहे हैं कि अपनी जान दे सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐ मौत न डराना मुझको ज़िंदगी का बहाना देकर, ऐ मौत न डराना मुझको ज़िंदगी का बहाना देकर, मैंने कफन बांध लिया है संविधान को बचाने की मोहब्बत में शहीद का बहाना लेकर। चलिए इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी अच्छे इंसान की दिल की आवाज़ के साथ, हक की आवाज़ के साथ। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय कर्नाटका।